Hello students, welcome to Shriji International School. Today we are going to study our new chapter, that is chapter number 1, noun. Before starting noun, first let us know that what is sentence. Sentence is a group of words which have some meaning and a complete sense. For example, if I say mom, I want, so do it have some meaning? Yes, it is, but they don't have any sense. That means what actually I want is not specified here. But if I say, Mom, I want to eat mango, now it means a kid want mango to eat and he is asking mango to his mother. Fine. So this statement is having some meaning as well as complete sense. Hence it is now become a sentence. Okay. Now, sentences are made up of different words. These different words help us to express ourselves. We can divide this word into 8 different categories depending upon the role they play in the sentence. Okay. For example, when we do some play, we are having different students which play different role, like role of police, doctor, mother, friends, etc. According to their role, they will act in a play, right? In the same way, different words will play different role in a sentence, and according to their role, we divide them. Now, what are these 8 categories? See here: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. These 8 categories are together known as part of speech. Each part of speech have different role, and in third class we will study all this part of speech and their role in sentences in detail in all the coming chapters. Okay, so today we are starting with our first part of speech, that is noun. You might have aware about the word noun, right? What is noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing. Noun is also known as naming word. Okay, so noun क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब किसी का नाम होता है. हम लोग कोई भी चीज़ होती है हमारे अराउंड, वी ऑलवेज कॉल बाय देयर नेम, राइट? अगर मुझे टेबल को इंडिकेट करना है तो टेबल इज द नेम गिवन टू द दैट शेप. उस शेप का जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको हमने क्या बोल दिया? टेबल. फाइन. द सेम वे इफ आई कॉल समवन like Rahul, so Rahul is a name given to that person. We are having lot of person around us, no? So from that person, who is the Rahul? कौन राहुल होगा उसमें से? तो पर्टिकुलर एक पर्सन को इंडिकेट करने के लिए, कि राहुल को इंडिकेट करने के लिए मैंने उसे क्या नाम दिया है? राहुल. ओके. सो नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है. नेमिंग वर्ड मतलब किसी का नाम. ओके. इफ वी वांट टू कॉल समवन और वांट टू इंडिकेट सम प्लेस और एन ऑब्जेक्ट, वी यूज देयर नेम, राइट? हम लोग किसी को भी इंडिकेट करने के लिए या फिर किसी का भी नाम लेने के लिए व्हाट वी यूज देयर नेम. इमेजिन इफ देयर इज नो नेम गिवन टू द थिंग्स, एनिमल, प्लेस और योर फ्रेंड्स और द पीपल दैट आर अराउंड यू, then how you are going to call them or indicate them that I am talking about this particular thing or this particular place. So for the communication purpose, we also gives some name to everything around us. तो हम लोगों को कम्युनिकेशन करने में इजी हो, हम लोग इंडिकेट कर सकें कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रही हूँ या फिर मैं इस स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रही हूँ. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव गिवन द नेम टू ईच एंड एवरीथिंग. हमारे आसपास में जो भी चीज़ होती है, चाहे वो थिंग हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या फिर कोई भी एनिमल होता है, या फिर कोई भी बर्ड्स हैं, या फिर कोई भी प्लेसेस हैं, कोई भी पर्सन है, व्हाट वी हैव डन, हमने सबको क्या दिया? एक नाम दे के रखा है. ये नाम इसका, ये नाम इसका, ये नाम इसका, ये नाम इसका. फाइन. सो ये जो नाम है, दिस ऑल नेम्स आर व्हाट? दिस ऑल नेम्स आर नाउन. और व्हाट, व्हाई वी हैव गिवन दिस? टू ease
आवर कम्युनिकेशन, हम लोग ईजिली बात कर सकें, हम लोग ईजिली इंडिकेट कर सकें कि हम लोग इसके बारे में बात करें. फाइन. Such names are called noun, and that's why noun is a naming word. Means वो word जो कि नाम होते हैं, right? So noun is a name of a person, place, animal or thing. Okay. Now see here the example. Harish and Arun are going to the bookshop to buy the storybook. So here Harish, Arun are the name of person. Fine. So I am indicating to the person whose name is Harish and Arun here. Okay. And bookshop and storybook. Storybook is a particular type of book जिसमें कि स्टोरीज होती है. तो हमने एक बुक को बोल दिया कि हमें स्टोरी बुक्स चाहिए, तो वो भी हमने क्या किया, एक नाम दिया है. एंड बुक शॉप क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे बुक्स मिलती है. फाइन. सो बुक शॉप भी क्या हो गया, हमारा एक प्लेस का नाम हो गया. सो बुक शॉप एंड स्टोरी बुक्स आर ऑल्सो द नाउन. सी सेकेंड एग्जाम्पल, द पैरट हैज़ ग्रीन feathers. सो यहाँ पे पैरट इज द नेम ऑफ अ बर्ड. ओके. सो पैरट इज अ नाउन. हियर द feathers इज ऑल्सो अ नाउन. My school has a big playground. So school and playground is a name of a place given. Okay. School is where we used to go for studying, and playground is the place where we used to play. So this is the name which is indicating. So school और playground यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे noun होगा. Fine. See here. Doctor, uncle, boy, teacher, sister, girl, mom, boy, all these are the names which is used to indicate the person. Okay. Now see, forest, school, lake, store, home, playground, all these are the name which is used to indicate the place. Okay. Now apple, t-shirt, pencil, etc. all this name is used to indicate what, थिंग्स. ये सब हम लोग थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना. डॉग, हाउस, चिकन एक्सेट्रा, ये सब हम लोग किसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स को इंडिकेट करने के लिए. तो ये सब हमने नाम दे के रखे हर एक चीज़ को जो हमारे आसपास है अराउंड. सो दिस ऑल आर नथिंग बट दिस ऑल आर द नेम्स, और दिस ऑल आर द नेमिंग वर्ड्स. वो क्या है, एक नेमिंग वर्ड्स हैं. फाइन. सो ऑल दिस नेम विच इज़ गिवन टू इंडिकेट, ये सारे के सारे नेम जो कि हमने किसी को इंडिकेट करने के लिए दे रखा है, कोई चीज़ को या फिर टू समबडी, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे जो वर्ड्स हैं या फिर वो सारे जो नेम्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन. ओके. सो आई होप now you all have understand what actually the noun is. See some more example over here. Some of the person are given here: baker, farmer, family, strangers. All these are the example of the person name. Okay. Now stadium, beach, city, village, all these are the example of the place name. किसी जगह के नाम के example है. Okay. Dog, wolf, elephant, eagle, all these are the example of animal name. ये सारे के सारे क्या है, animals के name है. Now bucket, lamp, comb and stone, all these are the example of what, थिंग्स के नाम है ये. सो ऑल दिस आर द नेमिंग वर्ड्स जो कि हमने किसी ना किसी चीज़ को क्या दे रखा है, नाम दे रखा है. सिंस ऑल दिस आर द नेम्स, सो ऑल दिस आर द नाउन्स, इसलिए वो क्या होंगे, नाउन्स होंगे. फाइन. नाउ मूविंग टू अवर बुक एक्सरसाइज. What the first question is given, we have to circle all the nouns in this sentences. The sentence which is given, यहाँ पे जो भी sentence दिए उसमें हमें क्या करना है, उन सबको क्या करना है, सर्कल करना है. ओके. फर्स्ट वन इज पायल ब्रॉट मी अ ब्यूटीफुल डॉल. सो यहाँ पे नेम्स क्या है, एक डॉल है जो कि हमने एक टॉय को नाम देख के रखा है, दैट इज द डॉल. एंड द पायल, पायल किसी बच्चे का नाम है या फिर किसी पर्सन का नाम है. सो पायल एंड डॉल इज द नाउन here. Fine. Next second question is fireman quickly puts out the fire. fireman ने क्या करा, जल्दी से आग बुझा दी. ओके. तो fireman क्या है, हमने एक नाम दिया है fireman, किसी पर्सन को नाम दिया जो कि फायर बुझाने का काम करता है. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग फायर, फायर किसको हमने बोला, आग को. तो यहाँ पे फायर भी एक आग को हमने नाम दिया हुआ, एंड फायरमैन इज ऑल्सो द नेम. सो दिस बोथ आर द नाउन्स हियर. Fine. Next, third one is mother dropped me off at the bus stop.
मम्मा ने मुझे कहाँ पे ड्रॉप कर दिया, बस स्टॉप पे। तो यहाँ पे मम्मी को इंडिकेट करने के लिए वी यूज़ मदर, एंड बस स्टॉप इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको ड्रॉप किया है। सो बस स्टॉप प्लेस हो गई, मदर नेम हो गया ऑफ अ पर्सन, ठीक है, विच वी यूज टू इंडिकेट। सो हियर मदर एंड बस स्टॉप इज द नाउन। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ वन, द लैम्प एंड इट्स मदर आर ब्लीडिंग। तो यहाँ पे लैम्प एंड मदर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फाइन, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट फिफ्थ वन, अंकित यू मे नीड एन अम्ब्रेला इफ इट बिगिंस टू रेन। सो अंकित को क्या चाहिए रहेगा, अम्ब्रेला चाहिए रहेगा अगर बारिश होती है तो। ओके, सो यहाँ पे अंकित नेम हो गया एंड अम्ब्रेला इज द नेम ऑफ द थिंग। यहाँ पे अम्ब्रेला क्या हो गया, एक थिंग का, एक वस्तु का नाम हो गया। सो अम्ब्रेला एंड अंकित इज द नाउन हियर। द फैमिली डिसाइडेड टू गो अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। सो रेस्टोरेंट क्या होगा, एक प्लेस का नाम होगा जहाँ पे कि हम लोग खाना खाने जाते हैं। एंड फैमिली, फैमिली इज इंडिकेटिंग ऑल द पर्सन्स इन द फैमिली। ओके, और सारे के सारे जो पर्सन्स होते हैं अपने घर पे, उन सबको इंडिकेट करने के लिए व्हाट वी यूज अ कॉमन वर्ड, दैट इज द फैमिली। सो फैमिली इज द नाउन हियर एंड रेस्टोरेंट इज ऑल्सो द नाउन हियर। नाउ moving to our second question, fill in the blanks with the noun from the box one has been done for you. So what we have to do, यहाँ पे ऊपर हमें options दे के रखे हैं and we have to fill the blanks using this option. Okay, first one is the quills on the porcupine back very sharp. जो quills होती है porcupine के back पे वो क्या होती है, sharp होती है. So what is the correct answer here is quills. Second is I love to play. We are talking about play. Play की बात कर रहे हैं तो what will be the correct option? Basketball, because we are going to play with only basketball, no? So I love to play basketball with my friends. Third one is mother packed delicious food for me. Since the word delicious is related to somewhere food, no? So food is the correct option. Food is the correct noun which we are going to use here. So mother packed delicious food for me. Fourth one is we rented a cottage on the seashore for the weekend. रेंट पे क्या चीज़ लेते हैं, या तो हम लोग रूम लेते हैं या फिर कोई हाउस लेते हैं, कोई प्लेस को रेंट पे लेते हैं, राइट? सो व्हाट वी आर रेंटेड हियर, अ कॉटेज। कॉटेज हमने रुकने के लिए रेंट पे लिया है। सो करेक्ट आंसर इज कॉटेज। फिफ्थ वन इज माई फादर लुक हैंडसम इन हिज आर्मी यूनिफॉर्म। किसके अंदर हैंडसम दिखते हैं, यूनिफॉर्म पहन के। कौन सी यूनिफॉर्म पहन के, दैट इज आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के। सो करेक्ट ऑप्शन इज यूनिफॉर्म। द सिक्स्थ वन इज सम ऑफ द पेंटिंग वी सॉ एट द म्यूजियम वर वेरी ओल्ड। सो म्यूजियम इज द करेक्ट आंसर हियर। म्यूजियम इज द नेम ऑफ द प्लेस, प्लेस है, ठीक है। तो हमने कहाँ पर देखी, वी आर सीइंग पेंटिंग एट सम प्लेस ना, किसी जगह पे देखी, तो कौन सी जगह है वो, म्यूजियम। सो म्यूजियम इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नाउ मूविंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट दिस पैराग्राफ विद सुटेबल नाउन। हमें क्या करना है, ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को देख के हमें सुटेबल नाउन, जो भी करेक्ट नाउन या फिर जो भी एप्रोप्रिएट नाउन होता है वो हमें ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। ओके, नाउ सी हियर, हम लोग यहाँ पे पिक्चर को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ट्री है, इट इज़ द पिक्चर ऑफ अ पार्क, पार्क का पिक्चर है, ठीक है। वहाँ पे एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, गार्डन की टेक केयर करता है, ही मे बी द गार्डनर, वो क्या होगा, गार्डनर होगा यहाँ का ज़रूर से, ठीक है। एंड जो ट्री है, ट्री के ऊपर क्या है, फ्रूट्स लगे हुए हैं, ट्री इज़ बियरिंग अ फ्रूट्स, ट्री के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्रूट्स है, बियर करना मतलब लगा होना, ठीक है, उगना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ फ्लावर्स हैं यहाँ पे, और फ्लावर्स के आसपास में कौन है, बटरफ्लाइज हैं। बटरफ्लाइज क्या कर रही है, फ्लटर कर रही हैं। ओके, फ्लटरिंग मतलब होता है फड़फड़ाना, तो बटरफ्लाई यहाँ पे क्या कर रही है, फ्लावर्स के आसपास में फ्लटर कर रही है। ओके, नाउ सी हियर, वी विल सी द पैराग्राफ। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क नियर माई हाउस। मेरे घर के पास में क्या है, एक ब्यूटीफुल पार्क है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस पार्क ओनली। इट इज़ फुल ऑफ प्रिटी फ्लावर्स। वहाँ पे बहुत सारे प्रिटी फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सब जगह पे क्या लगा हुआ है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, प्रिटी फ्लावर्स। और प्रिटी फ्लावर्स के ऊपर क्या होता है, मैनी बटरफ्लाइज फ्लटर्ड, ओके, ब्लड अराउंड द फ्लावर्स।
फ्लावर्स के अराउंड वो क्या करती रहती है, फ्लटर करती रहती है. देयर आर ऑल्सो अ फ्यू ट्रीज दैट बियर्स फ्रूट. ओके, तो वहाँ पे कुछ ट्रीज भी हैं जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं. फाइन. सूरज द गार्डनर, सूरज क्या है, गार्डनर है, तो यहाँ पे करेक्ट नाउन क्या आएगा, गार्डनर. सूरज द गार्डनर टेक्स एक्सीलेंट केयर ऑफ ऑल द प्लांट्स. वो क्या करता है, किसकी केयर करता है, गार्डनर का काम क्या होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी केयर करना. तो अगर सूरज गार्डनर है तो वो क्या, किसकी केयर करेगा, प्लांट्स की. सो करेक्ट आंसर इज प्लांट्स. ओके, इट इज अ जॉय टू गो टू द पार्क एवरी इवनिंग. हमें कहाँ जाके बहुत मज़ा आता है, इवनिंग में पार्क में जाके. सो पार्क इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो हियर what पार्क, फ्लावर्स, बटरफ्लाई, ट्रीज, फ्रूट्स, गार्डनर, प्लांट्स, पार्क, ऑल दिस आर नाउन. ये सारे के सारे नाउन्स है विच वी हैव filled in this paragraph. Fine. Now this is your homework and activity. What you have to do, you have to do this crossword using the clue I have given on the next page. ठीक है, so you have to do this crossword using this clue. You can take the help of your parents also. Okay, so do it, it's your homework. So here we have done with our noun chapter. Fine. I hope all of you have understand this chapter. Thank you.